Hello everyone, welcome to Tutor for Maths. And this is now class 7th. ਅਸੀਂ last exercise 3.4 ਤੇ ਹਾਂ. So in the previous exercises in 3.2, 3.1, 2, 3 ਅਸੀਂ mean, median, mode, range ਫਿਰ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ 4th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ 3.4 ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ. ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ. ਆ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ. ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ. ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. number of favorable cases over total number of cases. ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ. ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇਵੈਂਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ. ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਇਨ ਟੌਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਡ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ. ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਵੈਂਟ. ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ. ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਵੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਵੈਂਟ. ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਪੀ ਆਫ ਇਵੈਂਟ. ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਈ. ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਵੈਂਟ. ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ P ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਵੈਂਟ. ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ. ਫੇਵਰੇਬਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ. ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਦੀ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ is never less than 0. less than 0 तो मतलब कभी नेगेटिव नहीं होएगी. मीन्स नेवर नेगेटिव. नेवर गलती हुई जा रही नेगेटिव. ठीक है पहली गल तो कभी 0 तो घट नहीं होएगी. दूसरी ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਦੀ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 1. ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ 1.25 ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 0. ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 0. ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨੋਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ किस तरह के ये काम हो सकते हैं. पहला तरह का काम आता है पक्का सर्टेन. दूसरा आता है इम्पॉसिबल. तीजा होता है हो भी सकता है पर पक्का नहीं. ठीक है कैन हैपन
but not certain। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਸ ਥ्रो ਕਰੋਗੇ, ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਡਾਈਸ ਥ्रो ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਸ ਥ्रो ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਥ्रो ਕਰਾਂਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਟੇਨ ਹੈ। ठीक है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा, अगर असी गल करिए सर्टेन स्पेसिफिकली किते फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है उत्थे 1 लिख देना। इम्पॉसिबल की हमेशा 0 होती है, इन्हां दी आपां करनियां होंदियां। ठीक है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होंदी है, इम्पॉसिबल की हमेशा 0 होंदी है, बाकी दी आपां कड्ढी दी। हुण इम्पॉसिबल इवेंट की है, मान लो तुसी डाइस थ्रो कीता, तुहाडा 7 आ सकदा है या 9 आ सकता है, नो। सो अगर डाइस थ्रो करते पे 7 या 9 आ ही नहीं सकता, वो मेरी की है इम्पॉसिबल। ठीक है, हुण इहदे च थर्ड वाली च मैं कहनी आ जो तुसीं डाइस थ्रो करोगे तुहाडा 2 आएगा। मैं की किया, तुहाडा 2 आएगा। 2 आ सकता है पर पक्का नहीं है, पक्का नहीं ना, क्योंकि पक्का 1 भी आ सकता है, कुछ भी 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 इन्हां 6 दे विचों जिहड़ा मर्जी आ सकता है, लेकिन पक्का इस 2 आवे ये तो नहीं है। आ सकता है, कैन हैपन, बट पक्का नहीं। क्लीयर, ये कुछ चीज़ां सी जिहड़ियां तुहानूं प्रोबेबिलिटी दे विच पहलां समझनियां पैण। क्लीयर, चलो ये साडा फॉर्मूला जिहड़ा मैं उत्ते लिखवाया है दैट इज द मेन फॉर्मूला, इहदे बेसिस दे उत्ते ही साडा पूरा दा पूरा ये एक्सरसाइज हैगी है। ठीक है, क्लियर। मेरा ब्रैकेट ही डिलीट हो गया, मैं ऊपर दोबारा लिख देनी हाँ। सो इस बेसिस दे उत्ते ही तुहाडा सारा दा सारा की कहदा है एक्सरसाइज चलनी है। ठीक है जी, क्लियर। चलो हुण आने आ एक्सरसाइज दे क्वेश्चन ते। फर्स्ट क्वेश्चन कहते 200 दसना है whether the following is certain to happen, पक्का होन गया, इम्पॉसिबल होन गया ही नहीं, या हो सकदियां हैं may happen, हो सकती हैं may happen। अच्छा 200 people sit in a मारुति कार, हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। सो एक ही है इम्पॉसिबल, एक मारुति कार 200 बंदे। यू आर ओल्डर दैन येस्टरडे, अज तुसी कल नालों मतलब कल जो उम्र सी तुहाडी अज तुहाडी मतलब तुसी ओल्डर हो गए, वड्डे हो गए, पक्का ही है, ऑब्वियस है। सो इट इज सर्टेन। थर्ड, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप, हेड ही आवे कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, कैन हैपन है या मे हैपन है पर पक्का नहीं है, may happen but not certain। नेक्स्ट, डाइस थ्रो करो तो 8 आवे, डाइस तो 8 आ सकते, पॉसिबल ही नहीं, डाइस तो वध तो वध 6 तक है। टुमारो विल बी क्लाउडी, हो सकता है पर पक्का नहीं है, may happen but not possible, not certain। इंडिया विल विन, हो सकता है। नेक्स्ट 7th, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, हो सकता है क्योंकि सानू हुण दा नहीं पता, अगर वो दस्सिया हुंदा रेड तो बाद ग्रीन आनी है या येलो तो बाद, फिर तो असीं कह सकते सी, बट उन्होंने इदां कुछ भी नहीं दिता। क्लियर, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स, किन्ने मार्बल ने, 6 बॉक्स विच, उन्हां दे उत्ते नंबर चढ़े हुए हैं 6, 1 2 3 4 5 6। What is the probability that
ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਬਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇ 5। ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ 5। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हाँ, ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस। हाँ जी, 5 आन दे किन्ने मतलब 5 दे हक च किन्ने जने अंदर बैठे, सिर्फ एक ही बैठा ना जिहदे उत्ते 5 लिखे, सो इट मीन साडे हक च फेवरेबल च किन्ने 1। टोटल किन्ने बैठे अंदर बॉक्स च मार 6। सो आंसर की आ गया पहले पार्ट नंबर 5 आंदा 1/6। क्लियर। B part, probability of drawing a number with 2। Again second probability number 2 आवे, 2 नंबर लिखे तो मार्बल किन्ने है, इको ही है, सो ऊपर एक फेवरेबल नीचे टोटल किन्ने 6। सो आंसर is 1/6 again। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, there are 2 teams, ए ते बी। फ्लिप कर दे, क्रिकेट मैच है नॉर्मल, तो देखियो आएगा 2 टीम्स है विच कॉइन करते हैं टॉस, ते उतो पता लगता है कौन बैट करेगा या नहीं। कहने की प्रोबेबिलिटी है कि ए विल स्टार्ट, की प्रोबेबिलिटी है ए विल स्टार्ट। हाँ जी, कॉइन फ्लिप किया, कॉइन दे ते या ते हेड हुंदा है या टेल हुंदा है ना, तो जे कोई असी कहने स्टार्ट करे ता होएगा, मनदे अपने मन च कि हेड अगर आएगा ता, ते हेड किन्ने है इको, ठीक है ना, 2 ही ऑप्शन है, हेड या टेल। इट मीन्स टोटल केसेस जेडे इस केसेस च वो किन्ने नीचे 2, या तो वो स्टार्ट करेगा ए या नहीं करेगा, यही है, मतलब नहीं करेगा तभी। सो साडे हक च किन्ने केसेस है 1। सो आंसर सीधा ही की है 1/2। साडी फेवर स्टार्ट कर इको ही आएगा ना, दोनों च इको ऑप्शन, सो इट इज 1/2। वैसे भी 2 ही टीम्स है, ते टीम डिसाइड एक स्टार्ट करेगी, जे एक नहीं करेगी तो दूजी करेगी। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इदां दे अक्सर पेपर च आंदे। एक बैग दे विच 3 रेड ने ते 7 ग्रीन, एक बॉल कड्डी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहले केस की पूछे पी ऑफ रेड बॉल। बच्चे रेड बॉल किनिया ने 3, टोटल बॉल्स किनिया ने 3 and 7 10। सो आंसर इज 3/10 फर्स्ट दा। हुण दूसरी की पूछी है ग्रीन दी, ग्रीन बॉल दा फेवर मतलब फेवरेबल होंदा, जेड़ी चीज पूछी ओदे हक च, ग्रीन किनिया ने 7, टोटल किन्ना है 10। So that is the answer। Clear? ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन। मल्टीपल MCQs है, 5th 6th 7th 8th सारे MCQs है, पर आप सॉल्व करके करेंगे। इम्पॉसिबल तो तुहानू मैं ऊपर दस्सिया सी की हुंदा है 0, सर्टेन दा हुंदा है 1। नेक्स्ट 6 प्रोबेबिलिटी G लेटर, किन्ने लेटर है टोटल 1 2 3 4, टोटल मेरे को 4 है, G किन्नी बारी आया एक बारी, सो ऑप्शन इज 1/4। डाइस थ्रो कर रहे हैं 4 आवे, डाइस के उत्ते 4 किन्नी बारी लिखे होंगे इको बारी, ते टोटल किन्ने है 6। 4 ऊपर हुंदा, ऊपर देख ध्यान नाल, हुण इहदे दोनों च गलती ना करना, ऊपर हुंदा फेवरेबल, साडा 4 किन्नी बारी आया हुंदा डाइस ते इको बारी, सो आंसर की है 1/6। नेक्स्ट एक बैग दे विच 8th क्वेश्चन, एक बैग दे विच 5 वाइट है 10 ब्लैक है। पहले तो टोटल बॉल्स दस दो कितनी है 15। किदी कढ़नी है प्रोबेबिलिटी वाइट दी, पी ऑफ वाइट, वाइट किनिया ने विच
5 टोटल किन्नियां ने 15 सो कटिंग करके लिखा है कि सीधे सिंपल ही लिखा है सो आंसर इज 5/15 ठीक है सो ऑप्शन नंबर 2 so this is very easy topic probability ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दूजा ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਆਂਦਾ सर्टेन इवेंट ਦੀ probability ਦੱਸੋ ਜੀ 1 ਤੇ impossible ਦੀ 0 ਇਹ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ probability of impossible event की हुंदी है 0 ते probability of certain event की हुंदी है 1 so this is your note number 3 this is your note number 4 ठीक है तुसी नोट विच ही मेंशन कर लो क्लियर so that's all for this with this we completed the chapter number 3rd data handling chapter 3rd as well as exercise 3.4 data handling chapter is over so if you have any doubts do mention in the comment section I will guide you thank you